Hello friends, I Nilesh Rana. Hello friends, I Nilesh Rana, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department and coordinator of today's webinar session. Welcomes to all of you. Today, our topic is Introduction to 3D CAD CAE software SolidWorks. So on behalf of SNPI 10 RC, I welcome to our expert speaker, Mr. Jitendra Singh, Senior Application Engineer of Sopan Institute of Engineering and Design. Mr. Jitendra Singh is having an experience of more than 6 years in the field of machine design and manufacturing. So, now I request to Mr. Jitendra Singh to start today's webinar on SolidWorks. Sir, please. Okay. Thank you so much, sir, for inviting me. Hello, everyone. Good morning. Myself, Jitendra Kumar Singh. I'm working in Sopan Institute of Engineering and Design as a senior application engineer. Now I'm going to give you a short introduction about Sopan. We are working in three different work domain. First one is Sopan Institute of Engineering and Design, which is for computer education. Second one is Sopan Infotech, which is for software sales and engineering service. And third one is Sopan Consultancy, which is for job placement. So our today's webinar topic is Introduction to SolidWorks, CAD and CA. First of all, I will start with SolidWorks. What is SolidWorks? SolidWorks is a 3D modeling, CAD and CAE computer program which runs on Microsoft Windows. यानी SolidWorks एक 3D मॉडलिंग यानी CAD एंड CAE सॉफ्टवेयर है जो विंडोज प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट होते हैं. Okay. In definition, I mentioned CAD and CAE. CAD stands for Computer Aided Design and CAE stands for Computer Aided Engineering. CAD deals with 3D modeling and CAE deals with analysis and simulation of 3D model and 3D assembly. Okay. So in today's webinar, we will see how SolidWorks works and how different tools of SolidWorks works. Okay. तो आज का सेशन हम रखते हैं SolidWorks कैसे वर्क करता है, SolidWorks के टूल कैसे वर्क करते हैं. तो उसके लिए आज हम करेंगे नक्कल जॉइंट. नक्कल जॉइंट्स के पार्ट्स डिजाइन करेंगे एंड उस पार्ट को असेंबल करेंगे, देन उस पार्ट की ड्राइंग क्रिएट करेंगे थ्रू SolidWorks बाय यूजिंग SolidWorks. तो ये हमारा नक्कल जॉइंट है. ये नक्कल जॉइंट हम SolidWorks सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट करेंगे. सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं. SolidWorks सॉफ्टवेयर के तीन बेसिक मॉड्यूल्स हैं, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राइंग. SolidWorks सॉफ्टवेयर के थ्री डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, पार्ट मॉडलिंग, assembly and drawing. In part modeling, we create parts, individual parts, and in assembly we assemble number of parts together to create an assembly. In drawing, we create a sheet, means in drawing we represent our 3D model in 2D with dimensions. So SolidWorks सॉफ्टवेयर के 3 बेसिक मॉड्यूल्स हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग. SolidWorks सॉफ्टवेयर के और भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं लाइक सीट मेटल, सरफेस मॉडलिंग, वेल्डमेंट, रेंडरिंग, पाइपिंग, ट्यूबिंग. ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, बट ये सब मॉड्यूल्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. लाइक सीट मेटल, तो सीट मेटल जिस कंपनीज में सीट मेटल का रिक्वायरमेंट होगा वो कंपनी सीट मेटल यूज करेंगी. बट पार्ट मॉडलिंग, असेंबली एंड ड्राइंग SolidWorks सॉफ्टवेयर का बेसिक मॉड्यूल है, या बोल सकते हैं किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर का ये एक बेसिक मॉड्यूल है.
ओके, तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं हम। सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए यहाँ से न्यू फाइल का ऑप्शन आता है। न्यू फाइल पर आप क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपका 3 ऑप्शन आता है, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं सॉलिडवर्क्स के, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। पार्ट के अंदर इंडिविजुअल पार्ट क्रिएट करते हैं, असेंबली के अंदर जो हमने इंडिविजुअल पार्ट्स क्रिएट किए हैं वो असेंबली के अंदर इंसर्ट करके सारे पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं। ड्राइंग के अंदर जो हमने पार्ट क्रिएट किया है उसका 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं विथ डायमेंशंस एंड सम टेक्निकल सिंबल्स एंड सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, वो हम सीट जनरेट करते हैं, वो होता है ड्राइंग। ड्राइंग को ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, सब एक ही है, बट इन सॉफ्टवेयर हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब भी हमें कोई असेंबली क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले हम उसके पार्ट्स क्रिएट करते हैं। पार्ट्स क्रिएट करने के बाद हम उसको असेंबल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स से। पार्ट पर क्लिक करेंगे, पार्ट का जो सिंबल आ रहा है पार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, या सेकेंड मेथड है डबल क्लिक करेंगे पार्ट के ऊपर तो भी आपका पार्ट मॉडलिंग का विंडो ओपन हो जाएगा। ये हमारा पार्ट मॉडलिंग का विंडो ओपन हो गया। ओके, सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स इंटरफेसेस देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो हमारा स्पेस होता है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस और वर्किंग एरिया और ग्राफिक्स एरिया। यानी जो भी हम वर्क करते हैं वो हमारा यहाँ पे वर्क होता है, तो इसको बोलते हैं वर्किंग स्पेस और वर्किंग एरिया और ग्राफिक्स एरिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ऑप्शन आता है इसको बोलते हैं फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। इन सिंपल लैंग्वेज इसको हम डिजाइन ट्री और मॉडल ट्री बोल सकते हैं, बट इन सॉलिडवर्क्स इसको फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री बोलते हैं। फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में क्या होता है, जो भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं तो उस मॉडल को क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया है, कितने स्टेप में हमने पार्ट क्रिएट किया है, वो सारा डिटेल यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड होता है। यानी मॉडल ट्री, मॉडल का सारा इंफॉर्मेशन होता है मॉडल ट्री में। यानी जो फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री और मॉडल ट्री, इसके अंदर जो हमने 3D मॉडल क्रिएट किया है उस मॉडल का टोटल इंफॉर्मेशन होता है। लाइक कौन सा टूल यूज किया है, कितने स्टेप्स में पार्ट्स क्रिएट हुए, वो सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है। कुछ भी हमें चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो मॉडल में, तो थ्रू मॉडल ट्री हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऊपर एक बार आता है फीचर, स्केच, सरफेस, सीट मेटल, वेल्डमेंट, मोल्ड, इवेलुएट, इसको बोलते हैं टैब बार। उसके ऊपर जो ऑप्शन आता है जहां पे टूल्स हैं उसको बोलते हैं कमांड मैनेजर। जिस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड टूल कमांड मैनेजर में शो होता है। टैब पर क्लिक करेंगे तो टूल्स टैब के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो जिस मॉड्यूल में आपको वर्क करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। लाइक सरफेस पे क्लिक करेंगे तो रिलेटेड टू सरफेस सारे टूल्स यहाँ पर लोड हो जाएगा। सीट मेटल पर क्लिक करेंगे तो रिलेटेड टू सीट मेटल सारे टूल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये टैब्स हैं और ये हमारा कमांड मैनेजर है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ऑलरेडी कोई फाइल क्रिएट किया हुआ है उसको ओपन करना है, यानी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है तो ओपन का यूज कर सकते हैं। किसी फाइल को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। देन यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है हेड्स अप बोलते हैं इसको। यहाँ से आप जूम टू फिट कर सकते हैं, जूम टू एरिया कर सकते हैं, सेक्शन व्यू, किसी भी मॉडल का सेक्शन व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आप लाइव सेक्शन देख सकते हैं यहाँ से। ये व्यू ओरिएंटेशन होता है, यहाँ से आप किसी भी मॉडल का डिफरेंट व्यूज आप चेक कर सकते हैं, लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। यानी मॉडल को आप यहाँ से ओरिएंट करके चेक कर सकते हैं उसका व्यूज। ये डिस्प्ले स्टाइल होता है, मॉडल को डिफरेंट
मोड में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेडेड विथ एज, हिडन लाइन विजिबल, हिडन लाइन रिमूव्ड एंड वायर फ्रेम। तो ये हमारा हेड्स अप होता है। देन साइड में हमारा ऑप्शन होता है टास्क पेन। थ्रू टास्क पेन हम सॉलिडवर्क्स लाइब्रेरी को एंड सॉलिडवर्क्स रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस था, इसको क्या बोलते हैं, ओके, वर्क स्पेस और वर्किंग एरिया, फीचर मैनेजर, डिजाइन ट्री, टैब बार, कमांड मैनेजर, हेड्स अप, क्विक एक्सेस टूल बार एंड टास्क पेन। अब हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग यानी स्केच स्टार्ट करेंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक 2D स्केच होना चाहिए। 2D स्केच को ही हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट 3D मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट नहीं कर सकते। सो आपका फर्स्ट स्टेप होता है स्केच क्रिएट करना। स्केच क्रिएट करने के बाद आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। स्केच क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप स्केच स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्किंग यूनिट डिफाइन करना होता है। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन वर्किंग यूनिट। वर्किंग यूनिट सेट करने के लिए सॉलिडवर्क्स में वर्किंग यूनिट डिफाइन करने के लिए राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है MMGS, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। राइट साइड बॉटम कॉर्नर में MMGS लिख के आ रहा है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके यूनिट सिस्टम ओपन होगा। आपको किस यूनिट सिस्टम में वर्क करना है, डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, MKS, CGS, MMGS एंड IPS। आपको इनमें से जो भी यूनिट सिस्टम सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इन जनरल, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम MMGS को फॉलो करते हैं, तो हमने यहाँ से MMGS सेलेक्ट किया है। ओके, यूनिट सेट करने के बाद आपको प्लेन सेलेक्ट करना होता है, प्लेन डिफाइन करना होता है जिसके ऊपर आपको स्केच क्रिएट करना है। आफ्टर डिफाइनिंग यूनिट यू हैव टू सेलेक्ट अ प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच। ओके, तो यूनिट सेट करने के बाद आपको प्लेन सेलेक्ट करना होता है जिस प्लेन पर आपको वर्क करना है। मॉडल ट्री में 3 डिफरेंट प्लेन्स आ रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। मैकेनिकल के अंदर ये 3 प्लेन होते हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। आपको जिस प्लेन में वर्क करना है वो प्लेन आप यहां से सेलेक्ट करते हैं, देन उस प्लेन का स्केच मोड एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद आप स्केच स्टार्ट कर सकते हैं। यानी स्केच स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यूनिट, देन प्लेन सिलेक्शन। तो जिस प्लेन में आपको वर्क करना है वो प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो जिस प्लेन पर वर्क करना है उसको सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्केच। स्केच पर क्लिक करते हैं तो आपका प्लेन एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर रेड कलर में ओरिजिन का मार्क आता है। ओरिजिन का मार्क आ गया, इट मीन्स हम स्केच स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लेन सिलेक्शन के लिए जिस प्लेन में आपको वर्क करना है आप सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर आपका प्लेन हाईलाइट होगा। प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ से आप स्केच करेंगे। या फिर एक सेकंड मेथड भी है प्लेन सिलेक्शन का, एक और मेथड है। किसी भी सॉफ्टवेयर में एक ही टूल को सेलेक्ट करने का या यूज करने का मोर देन 1 मेथड हो सकता है। लाइक प्लेन सिलेक्शन के लिए 2 डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड, आपने प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ से स्केच किया। सेकंड मेथड है प्लेन सिलेक्शन का, प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से स्केच टैब में जाते हैं, तो यहाँ पर स्केच से रिलेटेड सारे टूल्स लोड हो जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है स्केच। स्केच पर क्लिक करते हैं तो आपका वर्किंग प्लेन डिफाइन हो जाता है, यहाँ से प्लेन सेलेक्ट हो जाता है। ओरिजिन का सिंबल है, इट मींस हमारा स्केच स्टार्ट हो चुका है। यानी अब हम स्केच स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी स्केच आपको क्रिएट करना है वो स्केच आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज मैं आपको नक्कल जॉइंट दिखाने वाला हूँ कि नक्कल जॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम उसके पार्ट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्क एंड। फोर्क एंड के लिए 2 व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। इन दोनों व्यूज का यूज करके हमें इस मॉडल को 3D में क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉप व्यू से।
टॉप व्यू में मैं यहां से यहां तक का स्केच क्रिएट करूंगा, यहां तक का स्केच क्रिएट करूंगा, ये टोटल ओके। ये स्केच करके क्रिएट करके उसको थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, देन जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉप व्यू से। जो भी आपको प्लेन पर वर्क करना है वो प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच क्लिक करते हैं, स्केच ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहां से, तो आपका प्लेन का स्केच मोड एक्टिवेट हो जाता है। अभी आपको जो भी स्केच क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन टूल से। कहीं भी लाइन क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे लाइन। लाइन कमांड लिया आपने, जहां से आपको स्केच स्टार्ट करना है क्लिक करेंगे, आपका वहां से लाइन स्टार्ट होगा। जिस डायरेक्शन में आपको लाइन क्रिएट करना है उस डायरेक्शन में माउस लेकर जाते हैं। सॉलिडवर्क्स में स्केच क्रिएट करते टाइम आप न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लाइन को लेंथ देना है तो अभी आप लाइन का लेंथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी स्केच क्रिएट करते टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपको लाइन क्रिएट करना है उस डायरेक्शन में माउस लेकर जाते हैं। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करना है तो माउस को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जहां पर पेंसिल का मार्क आ रहा है उसके नीचे येलो कलर का एक सिंबल आ रहा है। अगर वो येलो कलर का सिंबल आ रहा है इट मीन्स हमारा स्केच स्ट्रेट है, यानी हमारा लाइन स्ट्रेट है। अगर ये सिंबल नहीं आ रहा है इट मीन्स हमारा लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो लाइन क्रिएट करने के लिए या तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओ, या फिर अगर आप एंगल पर लाइन क्रिएट करते हैं, सपोज एंगल पर आपने लाइन क्रिएट किया इस टाइप से, अगर आपको इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कभी भी आपका स्केच रॉन्ग होता है तो आपको कंट्रोल जेड या डिलीट करके दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है, सॉलिडवर्क्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये स्केच, इसको हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट बनाना है इसको। तो लाइन को सेलेक्ट करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर मॉडल ट्री आता है वहां पे उसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ओपन हो गया लाइन प्रॉपर्टीज। लाइन था, यहाँ से लाइन था इसलिए यहाँ पे लाइन प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ गया। लाइन प्रॉपर्टीज में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड रिलेशंस, यानी इस लाइन के ऊपर हम रिलेशन ऐड कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। रिलेशन ऐड करने के लिए यहाँ से हम ऐड रिलेशन का यूज करेंगे। कौन सा रिलेशन ऐड करना है ये हमें डिफाइन करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर इस लाइन को हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल करेंगे। तो हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल किया तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर सिंबल ऐड हो जाता है हॉरिजॉन्टल का। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो इस टाइप से आप किसी भी स्केच के ऊपर आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्केच को डिलीट करना हो तो सेलेक्ट एंड डिलीट। माउस गेस्चर्स देख लेते हैं, माउस गेस्चर्स कैसे वर्क करता है। माउस स्क्रॉल बटन से हम जूम इन जूम आउट करते हैं, स्क्रॉल बटन को रोल करते हैं आप तो जूम इन जूम आउट होगा। स्क्रॉल बटन को प्रेस करके माउस को रोटेट करेंगे तो आपका स्क्रीन 360 डिग्री रोटेट होगा। अभी हम 2D में वर्क कर रहे हैं तो अपने स्क्रीन को 2D में लाना है तो उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल 8। कंट्रोल 8 नॉर्मल टू सिलेक्शन बोलते हैं इसको, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल 8। अगर आपको स्क्रीन को पैन करना हो तो पैन करने के लिए कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन को प्रेस करते हैं और माउस को मूव करते हैं तो आपका पैन होता है। तो मिडिल माउस बटन से स्क्रॉल, ओनली मिडिल माउस बटन को आप स्क्रॉल करते हैं, आगे पीछे करते हैं तो जूम इन जूम आउट होगा। मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रोटेट करते हैं स्क्रीन माउस को तो 360 डिग्री आपका स्क्रीन रोटेट होगा। कंट्रोल 8 से आपका स्क्रीन पैरेलल आएगा, नॉर्मल टू सिलेक्शन बोलते हैं इसको। पैन करने के लिए कंट्रोल एंड मिडिल माउस बटन का यूज करेंगे। किसी भी स्केच को डिलीट करना है सेलेक्ट एंड डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका स्केच डिलीट हो जाएगा। वन स्टेप बैक आना है तो उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल जेड अंडू। इस टाइप से आप स्केच क्रिएट करेंगे।
अगेन लाइन इस पॉइंट से नीचे, देन इस डायरेक्शन में, देन क्लोज। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। जो भी कमांड एक्टिवेट होगा वो एस्केप प्रेस करने से डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम ये स्केच क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और यहाँ पर दो सर्कल है। इनर सर्कल का डायमीटर 20 है और आउटर सर्कल का रेडियस 20। यहाँ से सर्कल कमांड का यूज करेंगे। सर्कल, जहां से आपको सर्कल क्रिएट करना है वहां पर आप सर्कल क्रिएट करेंगे। इस लाइन के मिड पॉइंट से सर्कल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सर्कल का सेंटर पॉइंट रख रहा हूं वहां पे। क्लिक। स्केच क्रिएट करते टाइम आप डायमेंशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देन आप रैंडम स्केच क्रिएट करेंगे। दो सर्कल क्रिएट किया, दोनों रैंडम क्रिएट किया। डायमेंशन डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे स्मार्ट डायमेंशन। किसी भी टाइप का आपको डायमेंशन डिफाइन करना हो सॉलिडवर्क्स में तो यूज करेंगे स्मार्ट डायमेंशन। सबसे पहले ये डायमेंशन दिया हुआ है 24, इसका डायमेंशन है 24, यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो इधर का डायमेंशन हमने 24 डिफाइन किया। सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं तो आपका मॉडिफाई का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप डायमेंशन टाइप करेंगे एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पर 24 इसका डायमेंशन दे दिया हमने। सर्कल को डायमीटर देना है और डायमेंशन देना है तो स्मार्ट डायमेंशन, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सर्कल को डायमेंशन देंगे। सर्कल को हम हमेशा डायमीटर ही डिफाइन कर सकते हैं, सर्कल का रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स में जब भी आप सर्कल को डायमेंशन देते हैं तो वो हमेशा डायमीटर इनपुट लेगा, रेडियस का इनपुट नहीं लेगा। तो आउटर सर्कल का रेडियस 20 है तो हम यहाँ से 20 इंटू 2, यहाँ पर 20 इंटू 2 करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा 40। इनर सर्कल का डायमीटर 20 है, दो सर्कल क्रिएट किया हमने। देन इस लाइन के एंड से सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस है 80, यहां से यहां का डायमेंशन डिफाइन करेंगे 80। जो भी एक्स्ट्रा स्केच है, एक्स्ट्रा स्केच को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिम। अगर आप डिलीट करते हैं तो पूरा का पूरा स्केच डिलीट होगा और पूरा का पूरा लाइन डिलीट होगा या सर्कल डिलीट होगा, आप जो भी सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी स्केच का पार्शियल पार्ट रिमूव करना है तो वहां पर यूज करेंगे ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज लेते हैं, माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को मूव करते हैं, आपका कर्सर जहां भी जाता है वो एरिया आपका ट्रिम होते जाता है। ओके, तो ट्रिम करने के लिए ट्रिम एंटिटीज, क्लिक, ट्रिम, ट्रिम, आप इस टाइप से ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम का रूल होता है कि जहां से दो स्केच इंटरसेक्ट हो रहा है वहां से वो ट्रिम होता है, ये ट्रिम। तो इस टाइप से आप स्केच को ट्रिम कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा स्केच है उसको ट्रिम करके रिमूव कर सकते हैं। आपने जो भी डायमेंशन डिफाइन किया है, सपोज वो डायमेंशन आपको चेंज करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने डायमेंशन गलत लिया है, आपको डायमेंशन मॉडिफाई करना है तो आप डायमेंशन मॉडिफाई कर सकते हैं। डायमेंशन चेंज करने के लिए जिस डायमेंशन को चेंज करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और आपको जो भी डायमेंशन में मॉडिफिकेशन करना है आप चेंज कर सकते हैं, उतना आपका चेंज हो जाएगा। आपको कभी भी किसी भी डायमेंशन में मॉडिफिकेशन करना है तो डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नया डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डायमेंशन का। स्केच क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से स्केच मोड से एग्जिट करते हैं, ये ऑप्शन होता है एग्जिट फ्रॉम स्केच मोड, या फिर सेकंड ऑप्शन है आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। स्केच टैब के अंदर यहाँ पर कमांड मैनेजर में ऑप्शन आता है एग्जिट स्केच, आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कहीं से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद आप मॉडल में कोई भी मॉडिफिकेशन या आप कोई भी स्केच ऐड नहीं कर सकते इसमें। अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो अगेन आपको स्केच मोड में एंटर करना होगा।
स्केच मोड में एंटर करने के लिए यहाँ से स्केच पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन लेंगे एडिट स्केच। तो यहाँ से आप अगेन स्केच मोड में एंटर कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद आप इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन करना है तो क्लिक और एडिट स्केच करना होगा, यानी आपको स्केच मोड में एंटर करना होगा। तो ये हमारा स्केच रेडी है। अब इसको हमें थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो थिकनेस हम यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये टोटल थिकनेस है 14 + 24। तो थिकनेस प्रोवाइड करने के जो भी टूल्स हैं वो फीचर्स टैब के अंदर आते हैं, यानी सॉलिड क्रिएट करने के जो भी टूल्स हैं वो फीचर्स टैब के अंदर आते हैं। फीचर्स टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पर सॉलिड क्रिएट करने के सारे टूल्स शो होते हैं। सबसे फर्स्ट टूल है एक्सट्रूडेड बॉस बेस। आपको थिकनेस ऐड करना है किसी भी पार्ट के ऊपर तो वहां पर यूज करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस। एक्सट्रूडेड बॉस बेस लिया और आप यहां से स्केच को सेलेक्ट करेंगे। स्केच को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड कमांड ओपन हो गया। यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितना थिकनेस ऐड करना है, वो वैल्यू हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर D1 का ऑप्शन आता है, हम यहाँ से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू है 14 + 14 + 24। यहाँ पर हम टाइप करेंगे 14 + 14 + 24। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ से हम डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में हमें थिकनेस ऐड करना है वो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ये जो ऑप्शन होता है जहां पर ब्लाइंड लिख के आता है, ये एक्सट्रूड करने के डिफरेंट मेथड है। ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पे ओनली अभी ब्लाइंड कवर कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे ऑप्शंस देख पाए। सो सबसे यूजफुल और मोस्ट पॉपुलर मेथड है ब्लाइंड। ब्लाइंड में आपको ओनली वैल्यू डिफाइन करना होता है और वो वैल्यू स्केच के किसी भी एक साइड में ऐड होता है और वो आप डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस साइड में ऐड करना है उस साइड का डायरेक्शन आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ओके करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अभी हमने सॉलिड में कन्वर्ट किया इसको। अभी हमें डाउट है कि ये हमारा कुछ इसमें हमने डायमेंशन मिस्टेक किया है, यानी एक्सट्रूड करने में वैल्यू गलत लिया है, मॉडिफिकेशन करना है तो हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमने थिकनेस ऐड किया है उस थिकनेस को हम अभी भी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने के लिए बॉस एक्सट्रूड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मॉडल ट्री में। मैंने पहले ही बताया था कि सॉलिड बनाने के लिए आप जो भी स्टेप करते हैं वो स्टेप यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो हमने बॉस एक्सट्रूड टूल यूज किया था, यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड ऐड हो गया। बॉस एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन लेंगे एडिट फीचर। आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। अभी भी वैल्यू चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब हमने एक्सट्रूड किया था तो ओनली आउटर स्केच को सेलेक्ट किया था, इनर स्केच को सेलेक्ट नहीं किया था। तो मल्टीपल स्केच को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से सेलेक्टेड कंटूर्स में क्लिक करेंगे और सेकंड स्केच को सेलेक्ट करेंगे। तो इस टाइप से आप मल्टीपल स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो चेंज यहाँ पे अप्लाई हो गया। यानी आप किसी भी स्टेज पर कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमें ये बीच से ये कट करना है, हमें ये एरिया कट करना है और ऊपर ये एरिया कट करना है और ये नीचे एरिया कट करना है। तो उसके लिए हमें जो भी एरिया कट करना है वो स्केच यहाँ पर क्रिएट करेंगे और कट करने के लिए यूज करेंगे एक्सट्रूडेड कट। एक्सट्रूडेड कट सेम टू सेम एक्सट्रूडेड बॉस बेस का अपोजिट होता है। एक्सट्रूडेड बॉस बेस में थिकनेस ऐड होता है और एक्सट्रूडेड कट में थिकनेस रिमूव होता है। तो सबसे पहले आपको स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। कट करने के लिए आपको एक स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। स्केच क्रिएट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस प्लेन में आपको स्केच क्रिएट करना है वो प्लेन सेलेक्ट करके स्केच मोड एक्टिवेट करना होता है। बट जब हम कोई भी सॉलिड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कोई एक स्क्रीन पर हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के फेस को एज अ प्लेन यूज कर सकते हैं। किसी भी सॉलिड मॉडल के फेस को एज अ प्लेन यूज कर सकते हैं, यानी उस फेस के ऊपर डायरेक्टली हम स्केच क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ से प्लेन, हर बार प्लेन सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, हम फेस को भी एज अ प्लेन यूज कर सकते हैं। जिस फेस पर आपको वर्क करना है वो फेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा, उसमें ऑप्शन आ रहा है स्केच, स्केच पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज सेम प्रोसेस, स्केच में जाके स्केच पर क्लिक करेंगे।
तो जिस फेस पे आपको वर्क करना है वो फेस सेलेक्ट किया और यहाँ से स्केच करते हैं। स्क्रीन को पैरेलल लाने के लिए कंट्रोल 8 का यूज करते हैं। जो भी स्केच क्रिएट करना है वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। लाइन के अंदर एक ऑप्शन आता है सेंटर लाइन। कहीं भी आपको कुछ भी रेफरेंस के लिए क्रिएट करना है तो आप सेंटर लाइन का यूज कर सकते हैं। सेंटर लाइन जस्ट फॉर रेफरेंस यूज होता है। आपको जो भी कहीं भी रेफरेंस चाहिए आप सेंटर लाइन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बीच में ये शेप कट करना है और ऊपर से ये शेप कट करना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले इस लाइन के ऊपर, मिड लाइन के ऊपर, सेंटर लाइन के ऊपर 2 सर्कल क्रिएट करेंगे। ये 24 है तो अंदर का डायमीटर 24। जो आउटर वन है, आउटर वन जो आर्क बन रहा है, जो सर्कल है, वो इस एज को टच कर रहा है और इस एज को टच कर रहा है। तो उसके लिए हम रिलेशन का यूज करेंगे। सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, देन इस एज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इस स्केच और एज दोनों को सेलेक्ट करते हैं। अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टीज ओपन होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पर ऐड रिलेशन ओपन होता है। ऐड रिलेशन में आप टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो ये सर्कल इस एज के साथ टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक साइड में इधर टच हो गया तो इधर भी टच हो रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप मैनुअली यहाँ पर टेंजेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हम ये स्केच क्रिएट करेंगे। ये 24 है, ये 24 है तो मिड से ऊपर 12 mm होगा, यानी यहां से यहां का गैप होगा 12। जो भी एक्स्ट्रा स्केच है उसको हम ट्रिम करेंगे। ये ऊपर में जो स्केच है वही स्केच नीचे के साइड है तो हम यहाँ पर मिरर एंटिटीज का यूज कर सकते हैं। मिरर एंटिटीज, यहाँ पे ऑप्शन आता है एंटिटीज टू मिरर, यानी किस एंटिटी को मिरर करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देन मिरर अबाउट, किसके अबाउट मिरर करना है, तो ये सेंटर लाइन जो हमने क्रिएट किया है उसके अबाउट मिरर करना है, तो मिरर अबाउट में इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा स्केच नीचे के साइड मिरर हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे हम। एक पॉइंट से लाइन क्रिएट किया है स्ट्रेट और हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया। जो भी एक्स्ट्रा स्केच है उसको हम ट्रिम करेंगे। एक्स्ट्रा स्केच को हमने ट्रिम किया। जो कट करना है उसी स्केच को रखेंगे, बाकी का स्केच हम ट्रिम करके रिमूव करेंगे। हमें ये एरिया कट करना है, ये एरिया कट करना है और ये एरिया कट करना है। तो 3 स्केच बनाया हमने और यहाँ से एग्जिट करेंगे। यहाँ से फीचर्स में जाएंगे और यूज करेंगे कट करने के लिए एक्सट्रूड कट। और आप यहाँ से एक स्केच को सेलेक्ट करेंगे। मल्टीपल स्केच के लिए मैंने बताया था, यहाँ से आप सेलेक्टेड कंटूर्स में क्लिक करेंगे और मल्टीपल स्केच को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से मेथड यूज करेंगे थ्रू ऑल बोथ। थ्रू ऑल मीन्स एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट तक कट होगा। तो ये आपका क्रिएट हो गया इस टाइप से। अभी यहाँ पर एंड पर डायमीटर 20 का सर्कल क्रिएट करना है और उसको एक्सट्रूड करना है अप टू 20 mm। तो ये फेस को सेलेक्ट करते हैं और स्केच क्रिएट करेंगे। यहाँ से एक सेंटर लाइन क्रिएट किया टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस फेस। सेंटर लाइन क्रिएट किया। सर्कल, इस लाइन के मिड पॉइंट पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे और उसको डायमेंशन डिफाइन करेंगे डायमीटर 20। देन एग्जिट फ्रॉम द स्केच मोड, देन एक्सट्रूड का यूज करेंगे और ये स्केच को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे 20 mm अप टू 20 mm। यहाँ से डिफाइन किया हमने एंड ओके। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया, डायमीटर 20 का एक शाफ्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ये जो आपको कट दिख रहा होगा ये कट क्रिएट करना। उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है
टॉप व्यू में यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, फ्रंट व्यू में भी मेजरमेंट दिया हुआ है। दोनों के हेल्प से हमें ये कट क्रिएट करना है। तो इस कट के लिए हम यूज करेंगे रिवॉल्व कट। रिवॉल्व एक टूल है सॉलिडवर्क्स में, दो टूल है, रिवॉल्व बॉस बेस एंड रिवॉल्व कट। रिवॉल्व को यूज करने के लिए आपके पास एक स्केच होना चाहिए और एक एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन होना चाहिए। जब किसी स्केच को एक एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री रिवॉल्व करेंगे तो वो पूरा सिलेंड्रिकल कंपोनेंट क्रिएट करेगा। अगर रिवॉल्व बॉस बेस का यूज करेंगे तो वो ऐड करेगा सिलेंड्रिकल शेप में। अगर आप रिवॉल्व कट का यूज करेंगे तो वहां से वो रिमूव करेगा। तो रिवॉल्व कट के लिए दो स्केच का रिक्वायरमेंट होगा, एक एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एंड हाफ स्केच। जहां भी आपको कट करना है वो फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे और सबसे पहले तो आप एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, यानी सेंटर लाइन का यूज करेंगे। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए आप सेंटर लाइन का यूज करते हैं। सेंटर लाइन को आप लेंथ कुछ भी दे सकते हैं। देन हाफ स्केच क्रिएट करते हैं। तो स्केच दिया हुआ है वो स्केच क्रिएट किया हमने, यानी यहाँ पे जो ये स्केच दिया हुआ है वो क्रिएट किया। यहाँ से ये लेंथ है 24 mm और ये लेंथ है 6 mm और रेडियस है 6 mm। अगेन यहाँ पर जब भी लाइन और आर्क या लाइन और सर्कल कनेक्ट होता है तो उनके बीच में कनेक्शन पॉइंट हमेशा टेंजेंट होना चाहिए। तो टेंजेंट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके लाइन और ये आर्क दोनों को यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज ओपन होगा और यहाँ से ऐड रिलेशन में टेंजेंट अप्लाई करेंगे। नाउ एग्जिट फ्रॉम स्केच मोड, यहाँ से यूज करेंगे रिवॉल्व कट। रिवॉल्व कट सेलेक्ट करते हैं, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। तो जो आपने स्केच क्रिएट किया था वो स्केच एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के अबाउट 360 डिग्री रिवॉल्व होगा और उस शेप में मटेरियल ऐड करेगा या रिमूव करेगा, डिपेंड करता है आपने कौन सा टूल यूज किया है। रिवॉल्व यूज किया है तो ऐड होगा, रिवॉल्व कट लिया है तो रिमूव होगा। यहाँ से ओके करते हैं, ये आपका कट क्रिएट हो गया। सेम कट आपको चारों एजेज पे चाहिए। यहाँ पे बाकी के जो 3 एज है, 1, 2 और 3, इन सारे प्लेसेस पे चाहिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिए सारे प्लेसेस सारे एजेज पर हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे पैटर्न कमांड, सर्कुलर पैटर्न। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट करना हो तो वहां पर पैटर्न का यूज करते हैं। लीनियर पैटर्न में जाते हैं और यहाँ से सर्कुलर पैटर्न का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आएगा डायरेक्शन, यानी किसके अबाउट आपको रिपीट करना है, किस डायरेक्शन में रिपीट करना है। हमें सर्कुलर डायरेक्शन में रिपीट करना है तो यहाँ से हम डायरेक्शन में सर्कुलर एज को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है फीचर एंड फेस, किस फीचर को पैटर्न करना है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये आपका पैटर्न हो गया। तो इस टाइप से आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। किसी भी पार्ट को क्रिएट करने के बाद उसको सेव करना है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल S। जहां भी आपको प्लेस करना है आप उस फोल्डर में जाएंगे और जिस भी नाम से आपको सेव करना है पार्ट को, उस नाम से आप पार्ट को सेव कर सकते हैं। आप यहाँ से नाम दे सकते हैं यहाँ से आप पार्ट का। तो ये फोर्क एंड है, ऑलरेडी मैंने फोर्क एंड बनाया हुआ है, तो एक ही नाम से 2 पार्ट सेव नहीं हो सकता है। तो आप इसको जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। यहाँ से आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल सेव हो गया। अभी भी आपको चेंज करना है तो आप थ्रू मॉडल ट्री कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कंट्रोल S करेंगे, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। जहां पे आपने सेव किया ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 सारे पार्ट्स हम क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास सारे पार्ट्स क्रिएटेड हैं। मैं आपको डायरेक्ट असेंबली करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल सारे पार्ट्स क्रिएट करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। अब मेथड सबके सेम है, सेम मेथड से हम सारे पार्ट्स क्रिएट करेंगे। इसमें भी सेम एक्सट्रूड का यूज होगा और ये वाला कट क्रिएट करने के लिए रिवॉल्व कट का यूज करेंगे। इसको हम रिवॉल्व से बना सकते हैं क्योंकि ये टोटल सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है, रिवॉल्व का यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम 2 सर्कल क्रिएट करके दोनों को एक्सट्रूड करेंगे 10 mm, तो हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। देन बी मिड का प्लेन सेलेक्ट करके डायमीटर 5 का सर्कल क्रिएट करके कट कर सकते हैं। टेपर पिन भी क्रिएट करने के लिए
यहाँ से हम मिड से एक लाइन क्रिएट करेंगे और पूरा स्केच क्रिएट करेंगे, मिड से एक लाइन क्रिएट करके नीचे का स्केच ट्रिम कर देंगे, यानी हम हाफ स्केच क्रिएट करेंगे, हाफ स्केच क्रिएट करके उसको हम रिवॉल्व करेंगे तो टेपर पिन क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, मैं डायरेक्ट आपको असेंबली दिखा रहा हूं अभी। असेंबली क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल और यहाँ से असेंबली टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, अदरवाइज डबल क्लिक से भी ओपन हो सकता है। ओके, ये कुछ विंडो ओपन होगा, उसको हम क्लोज करेंगे। सेम इंटरफेस असेंबली के लिए भी है, हमारा वर्क स्पेस, मॉडल ट्री, टैब बार एंड कमांड मैनेजर। यहाँ से हम यूनिट सेट करेंगे, जिस यूनिट में हमारा पार्ट्स है उसी यूनिट में असेंबली भी क्रिएट होना चाहिए, तो यहाँ से हम यूनिट सेट करेंगे। असेंबली करने के लिए सारे पार्ट्स को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, तो सारे पार्ट्स को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए यूज करेंगे इंसर्ट कंपोनेंट। इंसर्ट कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर ओपन होगा, यानी जहाँ से आपने पार्ट सेव किया है, जहाँ पर आपको वो फोल्डर में जाना होगा और उस फोल्डर के सारे पार्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे। जो आपने पार्ट क्रिएट किए हैं वो पार्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके 1 बाय 1 पार्ट स्क्रीन पर शो होगा। बस आपको स्क्रीन पर प्लेस करने के लिए क्लिक करना है, कहीं भी आपको क्लिक करना है। अभी हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देना है, अभी हम रैंडम इंसर्ट कर रहे हैं, हम असेंबली इसके बाद क्रिएट करेंगे। तो हम पहले रैंडम इंसर्ट करते हैं स्क्रीन पर, देन उसको असेंबल करते हैं। किसी भी पार्ट को आपको मूव करना है तो उस पार्ट को सेलेक्ट करके माउस को मूव करेंगे तो आपका पार्ट मूव होगा। पार्ट को रोटेट करना है तो मूव कंपोनेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ से रोटेट कंपोनेंट लेंगे और आप पार्ट को फ्री रोटेशन दे सकते हैं। आप यहाँ से, यहाँ पर सारे पार्ट्स रोटेट, मूव और रोटेट हो रहे हैं, बट एक पार्ट ऐसा है जो मूव और रोटेट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिडवर्क्स का रूल है, बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट ऑन स्क्रीन इंसर्ट होता है वो पार्ट ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। ये सॉलिडवर्क्स का रूल है कि जो भी कंपोनेंट ऑन स्क्रीन इंसर्ट होता है सबसे पहले वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। यहाँ मॉडल ट्री में देखेंगे तो सारे पार्ट्स आते हैं, आप यहाँ से क्लिक करके पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा कॉलर पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए कॉलर के सामने ब्रैकेट में लिख के आ रहा है F, यानी फिक्स्ड है वो। तो अगर इसको फिक्स नहीं करना है, आपको किसी और कंपोनेंट को फिक्स करना है, तो सबसे पहले आपको इस कंपोनेंट को फ्री करना होगा। तो इसको फ्री करने के लिए सेलेक्ट एंड राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्लोट करेंगे, तो आपका पार्ट फ्री हो जाएगा। अगेन जिस पार्ट को आपको फिक्स करना है उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे और फिक्स करेंगे। फिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि असेंबली का रूल होता है कि असेंबली में कोई एक कंपोनेंट फिक्स होना ही चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में पूरी असेंबली बिल्ड होती है। तो असेंबली में एक कंपोनेंट आपका हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो आप इस टाइप से फिक्स एंड फ्लोट कर सकते हैं, क्लिक, राइट क्लिक, फिक्स एंड फ्लोट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में बाकी सारे कंपोनेंट को आपको असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है मेट। मेट में डिफरेंट टाइप के मेट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, डिफरेंट टाइप के मेट्स होते हैं। वो अप्लाई करके आप पार्ट्स को एक दूसरे के साथ असेंबल करते हैं। मेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेट्स आते हैं, कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड कॉन्सेंट्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रिक एंड कोइंसिडेंट। कॉन्सेंट्रिक का यूज करते हैं जब दो सिलेंड्रिकल फेस के एक्सिस को एक लाइन में लाना हो, दोनों को सेम एक्सिस पर लाना हो, तो वहां पर यूज करते हैं कॉन्सेंट्रिक। दो फेस है, दो फेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है, तो वहां पर यूज करते हैं कोइंसिडेंट। दो फ्लैट फेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के लिए कोइंसिडेंट, एंड दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के एक्सिस को एक लाइन में लाने के लिए कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक करेंगे, अभी इस कंपोनेंट का एक्सिस और इस कंपोनेंट का एक्सिस हमें मेट करना है, तो इसका इनर फेस सेलेक्ट किया और इसका इनर फेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जो सबसे बेस्ट रिलेशन होता है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई कर देता है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको जो भी चेंज करना है आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, टेंजेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर ले सकते हैं।
बट दो सिलेंड्रिकल के केस में कॉन्सेंट्रिक इज द बेस्ट मेट। कॉन्सेंट्रिक यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके करेंगे या फिर यहाँ से ओके करेंगे। ओके, अभी इसका देखिए, इस पार्ट का मूवमेंट अप डाउन हो सकता है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है। अप डाउन मूवमेंट स्टॉप करना है तो ये फेस और ये फेस दोनों को सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हुआ कोइंसिडेंट। देन ये फेस और ये फेस दोनों को सेलेक्ट कोइंसिडेंट। अभी एज पर असेंबली ये दोनों असेंबल हो गए। उसके बाद हमें ये नक्कल पिन लगाना है, नक्कल पिन के एंड पर कॉलर लगाना है और सबसे लास्ट में हमें ये टेपर पिन ऐड करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंड्रिकल फेस, इसका सिलेंड्रिकल फेस कॉन्सेंट्रिक, ये फेस और ये फेस कोइंसिडेंट, देन ये सर्कुलर फेस और ये सर्कुलर फेस कॉन्सेंट्रिक, ये होल और ये होल एक लाइन होना चाहिए, तभी वहां पे हम पिन इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोनों को सेलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रिक। ये पिन ऐड करना है तो ये पिन सेलेक्ट किया और ये पिन ये होल सेलेक्ट किया कॉन्सेंट्रिक। तो इस टाइप से आप यहाँ पर मेट ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कंपोनेंट असेंबल हो गया। असेंबली हमें बाहर से तो करेक्ट दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है अंदर कहीं पर दो पार्ट के बीच में मे बी इंटरफेरेंस हो रहा हो, तो वो हम सॉलिडवर्क्स के अंदर चेक कर सकते हैं। यानी असेंबली करने के बाद हमें अगर चेक करना है कि कहीं इनसाइड इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं। ये बेनिफिट है सॉलिडवर्क्स का कि आप रियल टाइम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इवेलुएट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटरफेरेंस डिटेक्शन। इंटरफेरेंस डिटेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर इस पूरी असेंबली को कैलकुलेट करेगा और आपका यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहाँ पर रिजल्ट में जहां भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है नो इंटरफेरेंस, यानी हमारा ओके है, कहीं भी दो पार्ट के बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। अगर असेंबली क्रिएट करते टाइम आपने असेंबली क्रिएट किया, बाद में आपको लगता है कि कोई पार्ट आपने गलत बना दिया है, उसको वापस से करेक्ट करना है, तो उसको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है, हम असेंबली के अंदर ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। जिस पार्ट में आपको डाउट है उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से ऑप्शन लेंगे ओपन पार्ट। ओपन पार्ट करते हैं तो वो पार्ट एज अ पार्ट ओपन हो जाएगा, पार्ट मॉडलिंग में ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन करके आप यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करके डायरेक्टली क्लोज करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लाइक मैं इस पार्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करता हूँ, सपोज ये डायमीटर 20 की जगह डायमीटर 15 लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्लोज यस, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया डायमीटर। तो इस टाइप से हम डायमेंशन मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको असेंबली को सेव करना है तो सेम प्रोसेस कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से आपको जिस नाम से असेंबली सेव करना है वो नाम यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं जो भी आपको लेना है। यहाँ से आप क्लोज करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग यानी ये जो हमारा सीट है ये सेम टू सेम सीट क्रिएट करेंगे यूजिंग सॉलिडवर्क्स। तो उसके लिए न्यू फाइल लेते हैं आप यहाँ से और थर्ड मॉड्यूल है ड्राइंग। ड्राइंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ पर आपका ड्राइंग का विंडो ओपन होगा, ड्राफ्टिंग का विंडो ओपन होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, बट इन सॉलिडवर्क्स उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जब आप ड्राइंग ओपन करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है सीट फॉर्मेट और सीट साइज। किस फॉर्मेट में सीट लेना है और सीट का साइज क्या लेना है वो आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड सीट आते हैं, आपको जो भी सीट लेना है आप ले सकते हैं, A1, A2, A3, A4, आपको जो भी सीट चाहिए आप वो सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज 297 210 इसका साइज है।
ओके करते हैं तो आपका A4 साइज का सीट ओपन हो जाता है विथ बाय डिफॉल्ट टाइटल ब्लॉक। ये टाइटल ब्लॉक आपका बाय डिफॉल्ट आएगा हमेशा, ये सॉलिडवर्क्स में बना के दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल ब्लॉक हर कंपनी का खुद का कस्टमाइज टाइटल ब्लॉक होता है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है कि सबको यही डाटा दिखाना है। कंपनी टाइटल ब्लॉक एज पर रिक्वायरमेंट लेती है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टाइटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं। टाइटल ब्लॉक में कुछ भी चेंज करना है तो सीट राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर और यहाँ से एडिट सीट फॉर्मेट करते हैं। आप यहाँ से डिलीट करेंगे टाइटल ब्लॉक को और खुद का टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना है। स्केच में जाकर आप यहाँ से टाइटल ब्लॉक एज पर योर डायमेंशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डायमेंशन के लिए स्मार्ट डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, कितने का रो हाइट क्या चाहिए, कॉलम विड्थ क्या चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी रो और कॉलम में आपको कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए एनोटेशन का यूज करेंगे और एनोटेशन में नोट का ऑप्शन आता है, नोट का यूज करेंगे। क्लिक करके आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। टेक्स्ट साइज चेंज करना है, Ctrl+A, टेक्स्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं टाइटल ब्लॉक का। देन बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे एस्केप और इसको आप सेट कर सकते हैं। एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करने के बाद आपका यहाँ पे परमानेंटली दिखेगा। अब अभी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करना है अगेन सीट राइट क्लिक एडिट सीट फॉर्मेट। तो इस टाइप से आप अपना खुद का कस्टमाइज सीट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें सारे मॉडल्स का और असेंबली का व्यू हमें शो करना है एक सीट में। तो उसके लिए व्यू लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर व्यू लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू में ब्राउज करेंगे किसका व्यू आपको शो करना है। तो सबसे पहले मुझे असेंबली का व्यू शो करना है, तो यहाँ से असेंबली को सेलेक्ट किया, ओपन किया हमने। यहाँ से असेंबली का कौन सा व्यू दिखाना है वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। फ्रंट व्यू दिखाना है या टॉप व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका आइसोमेट्रिक व्यू प्लेस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो सीट में काफी छोटा दिख रहा है, यानी उसका साइज काफी छोटा आ रहा है, वो क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर हम इसी का प्रिंट लेते हैं तो ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो इस व्यू का साइज इंक्रीज करने के लिए, डिस्प्ले साइज इंक्रीज करने के लिए इस व्यू को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। व्यू को सेलेक्ट किया तो उस व्यू की प्रॉपर्टी ओपन हो गई, उसमें हम नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर स्केल का ऑप्शन आता है। हम कस्टम स्केल ले सकते हैं और आपको जिस स्केल पर रखना है आप वो स्केल यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले स्टाइल में यहाँ पर ये जो हमारा मॉडल है वो सॉलिड मॉडल दिख रहा है, बट यहाँ पर सॉलिड मॉडल नहीं है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है हिडन लाइन विजिबल। सॉलिड मॉडल दिखाना है तो हम यहाँ से शेडेड विथ एज लेते हैं तो हमारा कंप्लीट सॉलिड मॉडल दिखता है। तो इस टाइप से हम व्यू 1 by 1 यहाँ पर प्लेस करते हैं। अगर हमें किसी भी मॉडल का सेक्शन व्यू शो करना है तो हम सेक्शन व्यू भी शो कर सकते हैं। लाइक मॉडल व्यू, अगेन ब्राउज, नक्कल असेंबली। किसी व्यू को डिलीट करना है आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। पोजीशन एडजस्ट करना है आप क्लिक करके पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल चेंज करना है, स्केल चेंज किया यहाँ से। अगर आपको सेक्शन व्यू दिखाना है, ये सेक्शन व्यू दिखाना है तो सबसे पहले जिस व्यू से आपको सेक्शन कट करना है वो व्यू हम पहले प्लेस करते हैं। टॉप व्यू से सेक्शन कट करना है तो यहाँ पे टॉप व्यू प्लेस किया, फिर उस व्यू से सेक्शन कट करेंगे हम। सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट आपका सेक्शन व्यू क्रिएट नहीं होता है। सबसे पहले जहां से आपको सेक्शन कट करना है वो व्यू इंसर्ट करते हैं, देन आपके पास टूल होता है सेक्शन व्यू और यहाँ से आप डिफाइन करते हैं किस टाइप का सेक्शन कट करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वो डिफाइन करते हैं। देन जहां से आपको कट करना है क्लिक करते हैं। हैचिंग करना है आपको तो यहाँ से ऑटो हैचिंग ऑन करेंगे। ओके, तो ये आपका सेक्शन व्यू यहाँ पर क्रिएट हो गया। इस मॉडल का सेक्शन व्यू आप यहाँ पे क्रिएट कर लिया आपने। तो इस टाइप से आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मॉडल का व्यू आपको 1 by 1 मॉडल का व्यू इंसर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगेन मॉडल व्यू,
आपको जहां भी प्लेस करना है आप उसको प्लेस कर सकते हैं इस टाइप से। पोजीशन डिफाइन करना है, आप यहां से पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, डायमेंशनिंग शो करना है, यहाँ पे किसी भी व्यू का डायमेंशन शो करना है। एनोटेशन, एनोटेशन में स्मार्ट डायमेंशन का यूज करेंगे। जो भी आपको डायमेंशन शो करना है उस लाइन को या एज को या सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, तो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग जो आपने स्केच क्रिएट करते टाइम डायमेंशन लिया था वो डायमेंशन यहाँ पे शो करेगा सॉफ्टवेयर। बस आपको क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डायमेंशन डिफाइन करेगा यहाँ पर। तो इस टाइप से आप व्यू प्लेस कर सकते हैं और सारे डायमेंशंस आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपको जो भी डायमेंशन शो करने हैं वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हमारा होता है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा, ये टेबल क्रिएटेड है, इसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल टेबल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि एक असेंबली को क्रिएट करने के लिए जितने भी पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका इंफॉर्मेशन होता है। यानी एक असेंबली क्रिएट करने के लिए कौन सा पार्ट कितनी क्वांटिटी में हमने लिया हुआ है वो यहाँ पर हम बिल ऑफ मटेरियल में शो करते हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल होता है, आइटम नंबर, पार्ट नंबर एंड क्वांटिटी। तो बिल ऑफ मटेरियल हम सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, हमें अलग से एक्सेल सीट बनाने का जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होता है। यहाँ पे टेबल्स में जाएंगे और यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल टेबल लेते हैं और असेंबली को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपका बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करके दे देगा। आप साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं टेबल का। पार्ट क्रिएट करते टाइम जो भी आपने नाम सेव किया था वो पार्ट नंबर में आता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमेशा पार्ट नंबर होता है, पार्ट का नेम नहीं होता है, हमेशा पार्ट नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है हर पार्ट का। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे पार्ट नंबर होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी, कौन सा पार्ट कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। सारे पार्ट सिंगल सिंगल यूज हो रहे हैं इसलिए क्वांटिटी सबका 1 आ रहा है। कोई भी पार्ट अगर 2 क्वांटिटी में यूज हो रहा होता तो उसके सामने क्वांटिटी में 2 आएगा। यहाँ पे अगर आपको पार्ट नंबरिंग शो करना है तो उसके लिए आप बलून का यूज करते हैं, ऑटो बलून, और असेंबली को सेलेक्ट करते हैं। जितने भी पार्ट्स विजिबल होते हैं सबका यहाँ पे बलून क्रिएट हो जाता है, बाद में आप उनको सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप नंबरिंग भी शो कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स का बेनिफिट ये है कि ये अगर आपने ये जो सीट ये बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया है, अगर आपको उसको एज अ एक्सेल इंपोर्ट करना है तो आप सेव एज करके उसको एज अ एक्सेल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। यानी अगर आपको अलग से एक्सेल सीट जनरेट करने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर एज अ एक्सेल इसको सेव कर सकते हैं। यानी जो बिल ऑफ मटेरियल था उसको एज अ एक्सेल आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जो पार्ट लिया था उसमें देखेंगे आप कि एक एक्सेल सीट जनरेट हो जाता है। तो आप इस टाइप से इसको एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, एज अ एक्सेल सीट आप सेव कर सकते हैं इसको। अगर आपको किसी भी पार्ट के नीचे उसका नाम लिखना हो या व्यू के नीचे उसका कुछ नाम लिखना हो तो आप नोट का यूज कर सकते हैं। लाइक ये आइसोमेट्रिक व्यू हमें टाइप करना है, यहाँ पे नोट आइसोमेट्रिक, जो भी आपको टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके तो इस टाइप से आप पूरे सीट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में। यानी पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कहीं भी आपको टॉलरेंसेज ऐड करने हैं तो टॉलरेंसेज के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। डेटम फीचर, डेटम टारगेट, ये सब जीडीएनटी जो होता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, वो पूरा जीडीएनटी सिंबल्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कहीं भी वेल्ड सिंबल ऐड करना है आप कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप सॉलिडवर्क्स के अंदर कर सकते हैं। अब इस फाइल को आपको सेव करना होगा तो कंट्रोल एस करेंगे, और आपको इसको एज अ पीडीएफ सेव करना है तो सेव एज टाइप का यहाँ पे ऑप्शन आता है। जब आप सेव करते हैं तो सेव एज टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, और आपको जिस फोल्डर में सेव करना है वो सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो ये एज अ पीडीएफ आपका सेव हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे नक्कल असेंबली, और ये हमने जो
एक्सेल क्रिएट किया था, इंपोर्ट किया था, वो एक्सेल आ जाता है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एडवांस टॉपिक देख लेते हैं सॉलिडवर्क्स में। एडवांस टॉपिक में देखते हैं, कोई भी आप मॉडल क्रिएट करते हैं तो उस मॉडल का कुछ वेट होता है, कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया होगा, या उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो ये अगर ये हम मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो ये टाइम टेकिंग होगा, और आपको एक तो मैनुअली कैलकुलेशन करना होगा, वो टाइम टेकिंग होगा, अगर मिस्टेक हुआ तो वापस से प्रोसेस करना होगा। बट सॉफ्टवेयर में, सॉलिडवर्क सॉफ्टवेयर में विद इन अ क्लिक आप ये सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मास फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले तो मटेरियल डिफाइन करेंगे, क्योंकि मास मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल वाइज मास चेंज होता है किसी भी मॉडल का। तो मटेरियल डिफाइन करने के लिए मटेरियल, मॉडल ट्री में ऑप्शन आता है मटेरियल, ब्रैकेट में लिख के आता है नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है। मटेरियल डिफाइन करने के लिए मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आएगा एडिट मटेरियल। एडिट मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉलिडवर्क्स की मटेरियल की लाइब्रेरी है खुद की, वो लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं मटेरियल असाइन करने के लिए। आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको स्टील चाहिए तो स्टील पे क्लिक किया, आपके इतने टाइप की स्टील्स हैं, आपको जो भी चाहिए स्टील आप वो ले सकते हैं। सपोज अलॉय स्टील चाहिए, अलॉय स्टील लिया, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देन क्लोज, यहाँ पे अलॉय स्टील ऐड हो गया। अब हमें इसका मास फाइंड आउट करना है, तो मास फाइंड आउट करने के लिए इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है मास प्रॉपर्टीज। मास प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मास, मॉडल का कंप्लीट मास आ जाएगा। मास 531.75, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड सेंटर ऑफ मास, ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, यानी एक मॉडल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाती है। तो इस टाइप से आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मॉडल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, सिमुलेशन, जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू सॉलिडवर्क्स कैड एंड सीएई। तो ये हमारा कंप्लीट कैड का मॉड्यूल था। अभी सीएई का कुछ मॉड्यूल देख लेते हैं। सीएई मींस कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी पार्ट है उस पार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि जिस लोडिंग कंडीशन के लिए पार्ट को क्रिएट किया है उस लोडिंग कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाए। तो अगर हमें स्ट्रेंथ चेक करना है किसी भी पार्ट का, फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारा कैलकुलेशन हम सीएई के अंदर करते हैं। सपोज ये एक मॉडल है, इस मॉडल को मैं यहाँ से फिक्स करूँगा और इधर से लोड लगाऊंगा, तो हमें चेक करना है कि उस लोड की वजह से हमारा मॉडल फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये एक मॉडल ओपन किया एनालिसिस करने के लिए, एडिंस, सिमुलेशन एडिंस को ऑन करते हैं तो यहाँ पर सिमुलेशन का ऑप्शन ऐड होगा, सिमुलेशन। यहाँ से न्यू स्टडी लेंगे, न्यू स्टडी। तो इतने टाइप की स्टडी है जो हम सॉलिडवर्क्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैटिक, थर्मल, फ्रीक्वेंसी, बकलिंग, ड्रॉप टेस्ट, लीनियर, नॉन लीनियर, फ्लो सिमुलेशन, ये सारे हम कर सकते हैं। स्टैटिक ओके किया हमने। सबसे पहले तो आपको मटेरियल डिफाइन करना होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल सेलेक्ट किया, मटेरियल डिफाइन करेंगे आप, अलॉय स्टील अप्लाई किया, इसको भी मटेरियल अप्लाई हो गया। देन हमें डिफाइन करना होता है फिक्सचर, यानी हमारा कहाँ से मॉडल फिक्स हो रहा है। फिक्सचर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिक्स्ड ज्योमेट्री लेते हैं, और जहाँ से आपको फिक्स करना है आप वहाँ से सेलेक्ट करके फिक्स कर सकते हैं, उस फेस को सेलेक्ट करके फिक्स कर सकते हैं आप यहाँ से। देन एक्सटर्नल लोड का ऑप्शन आता है, राइट क्लिक, आपको क्या ऐड करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये फेस पर हम फोर्स ऐड कर रहे हैं, जो भी आपको वैल्यू लेना है फोर्स का वो आप वैल्यू डिफाइन करते हैं। यहाँ से हमने ओके किया, 1000 न्यूटन का लोड प्लेस किया। मेश से हम इस मॉडल को मेश्ड मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, मेशिंग डिफाइन करते हैं हम यहाँ से।
मेस करने से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, एक पार्ट को छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है। राइट क्लिक करके आप क्रिएट मेस कर सकते हैं। किस टाइप की मेसिंग चाहिए, कोरस और फाइन, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका मेस क्रिएट होता है। मेस क्रिएट करने के बाद आपको बस ओनली रन दिस स्टडी करना है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई एरिया क्रिएट करने डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा। बेनिफिट ये है आपका कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पर आपका स्ट्रेस का चार्ट का प्लॉट आ गया कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फेल होते हुए, ब्रेक होते हुए मॉडल नहीं दिखाता है। आपके पास वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यू को आपको यील्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर करना होता है और कंक्लूजन निकालना होता है कि आपका मॉडल फेल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ को पास करता है तो आपका मॉडल फेल हो जाता है। आपको चेक करना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर जनरेट हो रहा है और मिनिमम कहाँ जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट में स्ट्रेस के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ से चार्ट ऑप्शन, यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम नोटेशन ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑन ऑफ आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। मैक्सिमम शो कर रहा है यहाँ पर है और मिनिमम यहाँ पर है। सेम आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो राइट क्लिक करके आप डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं, कितना एमएम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है ये, आप यहाँ से एमएम में वैल्यू चेक कर सकते हैं आप यहाँ से कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। सिमुलेशन के अंदर भी ड्रॉप टेस्ट है। ड्रॉप टेस्ट मींस यानी किसी मॉडल को कुछ हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी वो ड्रॉप हो रहा है, या फिर अगर आप किसी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे थर्मल एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है थ्रू आउट द पार्ट, तो वो एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये जस्ट एक सिंपल एनालिसिस दिखाया मैंने आपको। ओके, तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू कैड, सॉलिडवर्क्स कैड एंड सीए। तो कैड के अंदर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, असेंबल करते हैं, उसका ड्राइंग क्रिएट करते हैं यानी मॉडलिंग प्रोसेस करते हैं। एंड सीए के अंदर हम उस मॉडल को वैलिडेट करते हैं, यानी जो हमने मॉडल क्रिएट किया है कैड में उसी मॉडल को हम सीए के अंदर वैलिडेट करते हैं। अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करना है तो रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है। रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसका एक वर्ड फाइल क्रिएट करके दे देगा आपको। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, वो रिपोर्ट क्रिएट करने में आपका टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपने क्या यहाँ पर पैरामीटर्स लिए हैं, वो सारा पैरामीटर वहाँ पर रिपोर्ट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, मॉडल्स ऐड हो जाएंगे सारे। तो इस टाइप से आपका जनरेट होता है, सॉफ्टवेयर आपका रिपोर्ट जनरेट कर रहा है वो। तो आप रिपोर्ट जनरेट भी कर सकते हैं और हमेशा रिपोर्ट वर्ड फाइल में होता है। आपको कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं उस रिपोर्ट को। इस टाइप से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे सारे कंटेंट्स आते हैं। मॉडल में क्या आपने पैरामीटर्स लिए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। मॉडल का मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, जो हमने मास प्रॉपर्टीज कैलकुलेट किया था वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर आपका ऐड हो जाता है। क्या आपने पैरामीटर्स लिए हैं वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं रिपोर्ट में। आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है, रिजल्ट का भी यहाँ पर आपका एक स्लाइड ऐड हो जाता है, एक सीट ऐड हो जाता है। तो इस टाइप से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। कंक्लूजन में अगर आपको कुछ भी
रिजल्ट जो आपका आया है वो आपको टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। कंक्लूजन हमेशा ब्लैंक आता है, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा हमें लिखना होता है कि क्या इस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या है, वो हमें लिखना होता है। तो इस टाइप से आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आप इसको एनिमेट करके भी दिखा सकते हैं, आपका स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है वो आप यहाँ से एनिमेट करके भी दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू कैड एंड सी। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। Thank you everyone for listening me. Okay, thank you everyone for listening me. I think किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। Okay, thank you so much, sir, for giving such wonderful speech and software explanation today. And I want to say to viewers that SolidWorks is a very important software for 3D modeling and analysis. And so many industries currently using this software now. Okay. So I thanks to all my friends for attending this webinar. I also thanks to Professor Vishal Dimar, Head of Department of Mechanical Engineering Department, and Principal Sir Dr. Piyush Jain for giving permission for this webinar. Okay. So, and also you can find this webinar on our website www.snpidrc.ac.in. Thank you so much, sir.